This call is now being recorded. So shall we start, guys? Yes, sir. Okay. So welcome to you all to this structural engineering class in which we are designing right now the continuous slab. Okay. These are different points that we have discussed about the slab, and we have started our one-way slab design in which we have designed simply supported one-way slab, cantilever one-way slab. Yes, means cantilever slab which will be designed as a one-way slab, and then we have moved towards the continuous slab design by IS code coefficients method. Is it correct? Yes. Okay. This is the design recap of your continuous slab. Okay, just we will go through that and then we will move to our today's work. Okay. So this was our question, that we have to design these three panels, and kindly see the symbol of reinforcement. Okay, some of you are showing this symbol in the plans like this is not the correct way of showing this symbol. This is the correct way. In one way slab, your symbol of this one way, that is representing the main reinforcement direction, should be always parallel to short direction. Are you getting this? Saad Khan, Poonam Kohli, बेटा आपको Yes, समझ sir. रहा है? Yes, sir. ओके, आपको ये चेंज करना पड़ेगा. Okay, so do not show this like this. This is symbols is always represents the direction of main reinforcement. Always keep this in mind. So we have studied our step one, that is depth selection criteria or depth assumption criteria from serviceability criteria, from clause number 23.2 of IS 456, and then we have assumed the depth of this slab as a 200. Then we have calculated the effective span through the clause number 20.2 and clause number B, page number 34, 35, and I have explained you the different cases for the effective span in the continuous beam or slab. Yes or no, guys? Please tell me. Okay. So always keep this in mind. This criteria should be satisfied or should not be get satisfied. Then what you have to do, that you should remember. You can expect small questions from this also to calculate the effective span. Then after getting effective span, that is 5200 mm, we have moved towards the load calculation, and we have written one note here that in case of continuous beam or slab design, we will calculate dead load separately and live load separately. Is it clear? ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes, Okay. sir. So according to that, we have calculated ultimate load, live load, ultimate load of live load, and ultimate load of dead load. Okay, we have calculated this separately. Then I have explained you this table. Yes, everyone is getting this. Yes, We sir. have we have gone through this table. Now there is there any problem or is there any kind of doubt in the table number 12? किसी को कुछ अभी भी समझना है इसमें? पूरा डिटेल में समझा दिया है बेटा, किस सपोर्ट को क्या बोला जाता है, किस स्पैन को क्या बोला जाता है, एंड दिस इज द डिटेल डिस्कशन अबाउट दिस. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. yes, ओके, सो वेरी गुड. तो हमने बेटा यहाँ से बात किया था कि विच स्पैन मोमेंट और विच सपोर्ट मोमेंट इज वेरी क्रिटिकल. तो यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, किसी भी प्रॉब्लम में बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, सो दैट कोएफिशिएंट गिवन इनटू द टेबल इनटू डिजाइन लोड. तो बेटा डिजाइन लोड यूडीएल का कैसे होता है, यूडीएल को लोड में कन्वर्ट करने के बाद कैसे मिलता है आपको, अगर ये एलएक्स होगा, ये आपका डब्ल्यू होगा, तो डिजाइन लोड कैसे मिलेगा बेटा? ये जो डिजाइन लोड यहाँ पे वर्ड है, ये कैसे मिलेगा हमें?
by multiplying intensity of UDL into LX? Yes or no? Yes, sir. And then again it is multiplied by effective span. So can I write this as a WU into LX, that is LX square? ये क्लियर हो गई बात? ये कैसे लिखा था मैंने? ये बात सबको क्लियर हो गई? Yes, sir. यस और नो? चलिए, तो बेटा यहां से आपको जो डिजाइन बेंडिंग मोमेंट लेने हैं, ओके, हम क्या करेंगे पता है आपको? अभी आपके पास ऐसे बहुत सारे स्पैन अगर होंगे बेटा, 7-8 स्पैन का भी अगर आपके पास बीम होगा, तो जनरली हम क्या करते हैं, जिस स्पैन पे सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट आएगा उसी बेंडिंग मोमेंट के लिए सारे स्पैन डिजाइन कर दो, मतलब सारे के सारे ओवरसेप हो जाएंगे कि नहीं, आप बताओ? Yes, sir. यस। और सिमिलरली जिस सपोर्ट पे, अभी अगर 4-5 सपोर्ट है अपने स्लैब में, तो जिस सपोर्ट पे सबसे ज्यादा सपोर्ट मूवमेंट आएगा उसके लिए हम पूरे सपोर्ट्स डिजाइन करेंगे। इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? बता दो। हाँ, तो यहां से हमें समझने को मिला था बेटा कि जो स्पैन मोमेंट होता है वो इस स्पैन पे इस कोएफिशिएंट के साथ बड़ा आता है। यस और नो? ये याद आ रहा है सबको? और जो सपोर्ट मूवमेंट होता है बेटा वो यहाँ पे सबसे बड़ा आता है। ये देखो मैंने इसको हाईलाइट भी करके रखा है येलो कलर से। ये मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, जहां डिनोमिनेटर कम उस रेशो की वैल्यू ज्यादा। तो 10 और 9 डिनोमिनेटर में है तो इन दोनों की समेशन हमेशा ज्यादा होगी 12 और 9 से। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। तो बेटा यहां से आप फ्रॉम टेबल 12, ओके, अभी हमारे क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे बेटा, सो स्पैन का मैक्सिमम positive bending moment for which you will design each and every span will be calculated like this कि 1/12 of WU। अभी मुझे बताओ 1/10 जब मेरे को यूज करना है, 1/10 मेरे को जब यूज करना है तो मैंने कौन सा लोड लेना चाहिए यहाँ पे? लाइव कौन सा लोड? लाइव लोड, मतलब नॉट फिक्स। तो WULL इंटू LEX का स्क्वायर। ये बात क्लियर यहाँ तक? यस और नो? ये बात समझ में आ रहा है बेटा सबको? और इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा बेटा? डेड लोड वाला बेंडिंग मोमेंट। दोनों लोड का समेशन ही होता है ना बेंडिंग मोमेंट, मतलब दोनों लोड के कारण आने वाला बेंडिंग मोमेंट ही आप लेते हो ना डिजाइन के लिए। यस और नो? तो इसको कैसे लिखते हैं देखो, प्लस 1/12 इंटू WUDL इंटू LX का स्क्वायर। ये बात सबको क्लियर हुई क्या? So we will directly take this as a maximum span bending moment for each and every span. This is clear to you or not? Please tell me. सबको बात समझ में आ रही है बेटा? प्लीज बताइए। देन फॉर सपोर्ट, अगर मैं सपोर्ट के लिए बात करना चाहूं तो मेरे पास 4-5 कोएफिशिएंट्स है दोस्तों अलग अलग जगह पे, लेकिन मैं ऐसी जगह चूज करूंगा जहां पे मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट मोमेंट मिल रहा है। तो कहां पे मिल रहा है मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट मोमेंट? एट सपोर्ट नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट, बराबर है? मतलब यहाँ पे सपोर्ट मोमेंट ज्यादा, यहाँ पे सपोर्ट मोमेंट ज्यादा। ये समझ में आ रहा है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस। हाँ, और ये आपको चीजें रिमेम्बर करनी है बेटा, समझ के इसको आपको समझ के रखना है अपने दिमाग में। डू नॉट फॉरगेट दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर of codal provision to be remembered by each and every student. Okay, so support का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दोस्तों, मैक्सिमम पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा ये बताओ पहले? तो दिस शुड बी ऑलवेज निगेटिव। तो ये कैसे आएगा देखो, अगेन क्या करना पड़ेगा हमें, -1/9 इंटू, अभी 1/9 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा देखो, लाइव लोड या डेड लोड? बताते रहो दोस्तों। माइनस दूसरा कंपोनेंट आपका डेड लोड का क्या है बेटा, कोएफिशिएंट 1/10 WUDL इंटू LEX का स्क्वायर। ये बात क्लियर हुई क्या बेंडिंग मोमेंट के बारे में? बता दो। ये बात सबको क्लियर हुई क्या बेंडिंग मोमेंट के बारे में?
is clear to everyone? I am asking you something. I Yes, want sir. answer. Yes, sir. So we will write here one note that every span will be designed for maximum positive bending moment, and every support will be designed for maximum negative bending moment. Is this clear to everyone? ये चीज सबको क्लियर है? नोट में लिख लो बेटा यहाँ पे आपको समझने के लिए. ओके Yes. चलो, बेंडिंग मोमेंट का मसला सबको क्लियर हो गया. तो अभी मुझे कैलकुलेट करके अपन लोग अभी बाद में लिखेंगे, पहले समझ लेते हैं क्लॉजेस को. अभी शेयर का क्लॉज समझ लो बेटा, शेयर का क्लॉज समझ लो. ये क्लॉज पढ़ना है अभी आपको, टेबल नंबर 13. तो सब लोग अपना टेबल नंबर 13 खोल के रखिए सामने. चलो, so fifth step is to calculate shear force. Fifth step is to calculate shear force in continuous beam or slab. So for this you have to refer table number 13. So for this we will refer table number 13. Okay, page number 36, IS 546 2000. ओके, सो अभी देखो बेटा इसमें क्या केस है, इसमें क्या केस है देखो ध्यान से. हाउ विल यू प्रिपेयर अ एसएफडी फॉर कंटिन्यूअस बीम. ये देखो, ये आपका बीम कुछ इस तरीके से है दोस्तों. 3 स्पैन वाला आपके पास बीम है. 1, अरे 3 स्पैन का है ना. Yes, sir. ओके, तो 3 स्पैन का है तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा. ये आपके आ गए बेटा 3 स्पैन मतलब 4 सपोर्ट. ये चीज क्लियर है सबको? Yes. फिर Yes, sir. उसके बाद हमने इस पे डाल के रखे हैं यूडीएल. बराबर, समझ लो ये है बेटा रेड वाला आपका डब्ल्यू ऑफ लाइव लोड, और इसके साथ इस पे डाला हुआ है हमने. ओके, 2 लोड है ना बेटा, अलग अलग कैलकुलेट किए देखो हमने. डब्ल्यू डेड लोड बराबर है चीज, बता दो. सेपरेट कैलकुलेट किए हैं इसलिए. ओके, और हर एक का इफेक्टिव स्पैन हमें कितना लेना है बेटा, एलईएक्स, जो हमने कैलकुलेट करके रखा है. यस, Yes, sir. चलो अभी मुझे बताओ इसका एसएफडी और बीएमडी आप लोग कैसे. बीएमडी तो मैंने आपको बता ही दिया है, एसएफडी कैसे आएगा आप बताओ. आप लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट पढ़े हो अच्छे से, तो आपको आना चाहिए हाउ टू ड्रॉ द बीएमडी एंड एसएफडी. ट्राई टू ड्रॉ इट इन योर नोटबुक. ओके, ट्राई टू ड्रॉ इट. मैं भी बनाता हूँ, मुझे भी आता है कि नहीं देख लेते हैं. सो दिस इज योर बीम लाइन. Now if you start drawing the SFD from left to right, then there will be reaction at this A, B, C, D supports. Okay, these are supports. And if we give numbers to the intermediate span, then 1, 2, 3 will be the span points. बराबर है बेटा, पिछले केस में भी हमने 1, 2, 3, 4 Yes, sir. किया था. हाँ, तो अभी हम लोग नोमेनक्लेचर थोड़ा चेंज करते, या फिर आपने वही कंटिन्यू रखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी अगर मुझे एसएफडी ड्रॉ करना है तो कैसा आएगा बताइए. इधर एक वर्टिकल पॉजिटिव पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे आर ए अपवर्ड रहेगा. देन देयर विल बी इंक्लाइंड लाइन अप टू दिस. देन अगेन देयर विल बी पॉजिटिव एंड अपवर्ड ordinate will be here of shear force. Again it will go down, again it will be positive and upward, and again it will go down, and again it will meet to 0. Is it clear? ऐसे बनेगा कि नहीं आप बताओ. Yes, sir. Yes, sir. दिस इज योर एसएफडी. एंड बीएमडी तो मैंने आपको कल ही बता दी बेटा. बीएमडी तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही एक्सप्लेन कर दी. कैसा बनेगा इसका बीएमडी.
इसका BMD कैसे बनेगा? दिस इज सिंपल सपोर्ट तो जीरो मोमेंट, स्पैन में है तो मैक्सिमम मोमेंट, कंटिन्यूअस सपोर्ट है तो निगेटिव मोमेंट, बीच में अगेन स्पैन है लेकिन इससे थोड़ा कम बनेगा क्योंकि ये इंटरमीडिएट स्पैन है, अगेन देयर विल बी सपोर्ट सो नेगेटिव मोमेंट, अगेन देयर इज एंड स्पैन देयरफॉर मैक्सिमम स्पैन मोमेंट एंड अगेन इट इज अ सिंपल सपोर्ट देयरफॉर जीरो मोमेंट। समझ में आ रहा है क्या ये चीज? Yes, और sir. ये ज्वाइन होगा बेटा आपका पैराबोलिक कर्व से। व्हाई पैराबोलिक कर्व्स वी आर यूजिंग हियर? ये पैराबोलिक कर्व क्यों आ रहा है बेटा? बता दो जल्दी से। UDL. यूडीएल है इसलिए। वेरी गुड। तो बेटा ये हो गया आपका, अभी बराबर है साथ अपनी डायग्राम, पॉजिटिव Yes. नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो बेटा कभी ऊपर ड्रॉ करो या नीचे ड्रॉ करो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दिस इज अ साइन कन्वेंशन। अभी यहाँ पे आपने क्या जूम किया है कि बीम के ऊपर मैं पॉजिटिव वाली चीजें ड्रॉ करूंगा, बीम के नीचे मैं निगेटिव वाली चीजें ड्रॉ करूंगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सिमिलर वे में इधर भी हमने वही रखा है कि ऊपर पॉजिटिव नीचे, मतलब ये पॉजिटिव शेयर फोर्स वाला एरिया है, निगेटिव वाला है, पॉजिटिव वाला है, निगेटिव वाला है, पॉजिटिव वाला है, निगेटिव वाला है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बताते चलो जल्दी जल्दी। Yes. ओके तो बेटा SFD BMD क्लियर हुआ, कंटिन्यूअस का कैसे ड्रॉ करना है। तो आपने BM कोएफिशिएंट्स देख लिए हैं दोस्तों, आपने BM कोएफिशिएंट्स देख लिए हैं। अभी आपको क्या देखना है? टेबल नंबर 13। सो टेबल नंबर 13 क्या एक्सप्लेन करता है पहले ध्यान से देख लो। ओके तो टेबल नंबर 13 आपको देता है बेटा, अगेन देयर इज अ टाइप ऑफ लोड कॉलम फर्स्ट, अगेन देयर इज अ डेड लोड फर्स्ट एंड लाइव लोड सेकंड। ये चीज सबको क्लियर? Yes. हाँ। अभी बताओ बेटा अलग अलग चीजें देखो, शेयर फोर्स कहाँ पे आता है जनरली? At support. एट सपोर्ट आता है। तो इसमें स्पैन वाली चीज कोई लिखी होनी चाहिए क्या? तो हर जगह पे अगर आपने पढ़ा बेटा तो सपोर्ट 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 ही लिखा है, तो इसमें ऐसा नहीं होगा। बेंडिंग मोमेंट कैन बी अवेलेबल एट कंटिन्यूअस सपोर्ट and generally it is available at span. Okay, positive bending moment is always available at span mid center and negative bending moment is always available at continuous support, but shear force is always available at support. It may be a end support or it may be a intermediate support. Are you getting this point? चीज क्लियर हो रही है क्या सबको? देख लो। ओके तो यहाँ पे बेटा कोएफिशिएंट समझ लेते हैं किस तरीके से होंगे। अगेन आई एम ड्राइंग फॉर यू द शियर फोर्स डायग्राम ऑफ आवर बीम। अपना ही क्वेश्चन चल रहा है, डोंट वरी अबाउट दिस। तो आपकी SFD कुछ इस तरीके से बन के रखी है बेटा, हमने उधर बना के रखी है, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। यस Yes, sir. ओके ये आपका SFD बन के रखा है। तो आप मुझे बताओ, अभी मैंने इसको नाम भी दिए हैं कुछ बढ़िया तरीके से। दिस इज माई A सपोर्ट, दिस इज माई B सपोर्ट, C सपोर्ट, D सपोर्ट। चलो तो एट एंड सपोर्ट, तो बताइए एंड सपोर्ट कौन कौन से है बेटा? इस पर्टिकुलर AD. केस में हाँ, तो A आपका एंड सपोर्ट है और D आपका एंड सपोर्ट है। तो यहाँ पे आप क्या क्या कोएफिशिएंट यूज करेंगे? डेड लोड के लिए 0.4 एंड लाइव लोड के लिए बेटा कितना यूज करेंगे? 0.45। ये चीज क्लियर हुई? ये वैल्यू निकालने के लिए ये चीज क्लियर हुई क्या सबको? बता दो। Yes, sir. अभी आप लोगों ने डायग्राम कैसे बनाया है? डायग्राम का प्रोपेगेशन देख लो ध्यान से, लेफ्ट टू राइट बनाया है हमने। यस और नो गाइस? Yes, sir. दिस इज द प्रोपेगेशन ऑफ, ओके दिस इज द SFD ड्राइंग का हमारा क्या बोलेंगे हम उसे? डायरेक्शन है। SFD डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमने ड्रॉ किया है। तो अभी बेटा देखो आओ, एट सपोर्ट नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट, एंड के नेक्स्ट वाले सपोर्ट कौन से है अपने इसमें? तो यही सेम चीज आप डी पर भी लिख देंगे, बराबर है ना बेटा? समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. ओके अपने क्वेश्चन की बात चल रही है बस, और इधर से हम लोग कोएफिशिएंट उठा रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे बताओ, कोई एट सपोर्ट नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट तो कौन कौन से है बेटा? ये है हमारा A एंड D, और ये कौन से है बताओ? Yes. कौन से सपोर्ट है आपके नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट?
which supports in the beam are next to the end support? BC. B and C. B and C both are the supports next to the end support. Are you getting this point? So B and D are our support next to the end support. तो वहां पे क्या लिखा है बेटा, लेकिन दो चीजें दी है, आउटर एंड इनर। फिर आउटर और इनर साइड क्या होगा? तो सबसे पहले वहां पे एक सेंटर लाइन खींच दो, मतलब एक डॉटेड लाइन जो पार्टीशन वॉल की तरह काम करेगी। ओके, ये चीज क्लियर है सबको? Yes, sir. बढ़िया। फिर क्या करेंगे अभी देखो तो, फिर अभी हम लोग देखेंगे बेटा, बी और सी हमारा क्या है, नेक्स्ट टू दी एंड सपोर्ट है, और उसमें बोला गया है इनर और आउटर साइड। तो देखो जैसे आपके प्रोपैगेशन है बीएमडी का, जो कि ए पॉइंट से शुरू होकर बी तक गया है, तो आप बीम के अंदर जा रहे हो इस तरीके से, यस और नो? Yes. हाँ, तो बेटा बीम के लिए, इस बीम में बी पॉइंट के लिए दिस साइड विल बी आउटर साइड एंड दिस साइड विल बी इनर साइड ऑफ बीम। ये चीज क्लियर हो रही है क्या सबको? बता दो, ये चीज क्लियर हो रही है? तो यहाँ पे लिख दो आउटर इनर। सिमिलरली यहाँ पे बताओ, जैसे ही आप इधर से इधर जा रहे हो बेटा, ओके, तो मुझे बताओ ये सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगी कि नहीं? सी के लिए ये बाजू इनर होगी बेटा और ये आउटर होगी, यस और नो? बताते चलो। Yes. ओके, और आप यहाँ पे क्या कर सकते हो दोस्तों, आप इसको ये सपोर्ट भी कर सकते हो कंसिडर, क्योंकि आप वन साइडेड प्रोपेगेशन भी ले सकते हो, टू साइडेड प्रोपेगेशन भी ले सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। क्योंकि आपको कोई भी एक ही वैल्यू इसमें यूज करनी, सबके सबके शेयर फोर्स नहीं कैलकुलेट करने हमें। तो देखो आउटर साइड में बी सपोर्ट के लिए व्हाट इज द कोएफिशिएंट गिवन? 0.6 for this, 0.6 for this, yes, is it clear to everyone? Yes, sir. हाँ, और बेटा इनर के लिए क्या दिया गया है? 0.55 एंड 0.6। क्लियर? ये चीज क्लियर है क्या? बता दो। Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे बताओ आउटर साइड पे ये वाला शेयर फोर्स आएगा या ये वाला? अभी ये मेरे को आप बताओ। दो पॉइंट्स मिलेंगे ना आपको, बी पॉइंट पे शेयर फोर्स की दो वैल्यू मिलेंगी, यस और नो गाइस? एक निगेटिव वैल्यू मिलेगी, एक पॉजिटिव मिलेगी। सो विच वन विल बी योर आउटर shear force and which one will be your inner shear force? बताओ, पॉजिटिव वाला कौन सा होगा और निगेटिव वाला कौन सा होगा? इनर होगा या आउटर होगा? आप बताइए। Negative. आउटर शेयर फोर्स कौन सा होगा? निगेटिव। देखो बेटा सबसे पहले आप इधर से जैसे ही निकले, तो सबसे पहले आप घर के अंदर जब घुसते हो तो दरवाजे पे आप किधर होते हो? बाहर की साइड ही होते हो ना सबसे पहले। देन वी विल एंटर टू दी होम। तो ये आउटर साइड सबसे पहले हमें लगेगा इधर से जाते वक्त, मतलब बी का जो सपोर्ट का शेयर फोर्स है बेटा निगेटिव, दैट विल बी कॉल्ड एज आउटर फर्स्ट एंड देन इट विल मूव टू दिस पॉजिटिव, दैट इज इनर वन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Similarly, if you treat this C support again as a next support to the end support, then this will be a inner shear force for C and this will be outer shear force for C. Are you getting this point? देखो बेटा घर से बाहर निकल रहे हो, घर से बाहर निकल रहे हो तो सबसे पहले आप घर के अंदर होंगे, इसीलिए इनर साइड, एंड जैसे आप अपना डोर क्रॉस करोगे तो वैसे ही आप बेटा आउटर साइड पे चले जाओगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. ओके, तो एक सिंगल प्रोपेगेशन आपने रखा तो आपको कुछ इस तरीके से ये चीज मिलेगी। तो देखना जो इधर आउटर के होंगे वही आपको इधर बेटा आउटर में मिलेंगे, ये चीज हमेशा याद रखना। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? या आपको ऐसे भी बताया जाएगा बहुत बार कि ये सपोर्ट टू द नेक्स्ट सपोर्ट है तो इसको इधर से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर से पढ़ेंगे तो ये बात आउटर हो जाएगी, ये बात इनर हो जाएगी। यस, सेम चीज है, कुछ भी गलत नहीं है उसमें और कुछ भी अलग नहीं है। देखो दोनों तरफ से जाओ आपको इनर और आउटर सेम मिलेगा बेटा, मिल रहा है कि नहीं? देखो यस, हाँ, तो इनर के कोएफिशिएंट आप इधर लिखेंगे अगेन एंड आउटर के कोएफिशिएंट्स आप इधर लिखेंगे, बराबर।
तो एक बार आपको आउटर इस पे निगेटिव मिल जाएगा, एक बार आउटर इधर आपको पॉजिटिव मिल जाएगा, एक बार इनर आपको बी पे पॉजिटिव मिल जाएगा और इनर सी पे आपको निगेटिव मिल जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस, ये बात समझ में आ रही है सबको? और ये जो है बेटा ये कोएफिशिएंट अभी अपने क्वेश्चन में अपने ये यूज के नहीं है। अगर आपको ऐसा बीम दे दिया जाता 1 2 3 4 5 सपोर्ट वाला, ओके, तो आप यहाँ पे 0.4 0.45 यूज करते, यहाँ पे आप 0.6 एंड इनर के लिए 0.55 एंड 0.6 यूज करते। और इस पर्टिकुलर अभी ये सपोर्ट कौन सा आ जाएगा बताओ? ये वाले सपोर्ट इंटीरियर। इंटरमीडिएट, तो यहाँ पे आप यूज करते बेटा 0.5 एंड 0.6। ये समझ में आ रहा है कि सबको? लेकिन अपना केस ये नहीं है, अपना केस ये है, तो हमें वो अभी फिलहाल में यूज में नहीं है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस, चलो बताओ अभी आपको इन सारे कोएफिशिएंट्स को अगर मैं मल्टीप्लाई, अभी शेयर फोर्स कैसे मिलेगा और वो भी देख लो। शेयर फोर्स का कैलकुलेशन नोट में देखो, फॉर ऑब्टेनिंग शेयर फोर्स द कोएफिशिएंट शैल बी मल्टीप्लाइड बाय द डिजाइन लोड ओनली। इफेक्टिव स्पैन का मल्टीप्लायर है क्या यहाँ पे? इफेक्टिव स्पैन का मल्टीप्लायर है कोएफिशिएंट इनटू डिजाइन लोड। इतना ही बोला गया बेटा। इफेक्टिव स्पैन दिया है क्या उन्होंने लेना है ऐसे? नो, दिया नहीं है। मतलब क्या हो जाएगा देखो, अगर आप शेयर फोर्स की वैल्यू देखेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूडीएल तो क्या आती है बेटा? WL/2 आता है ना। मतलब मैं इसको ऐसे लिख यस सकता सर। हूँ क्या? देखो तो यहाँ पे 0.5 टाइम्स WU इंटू LX लिख सकता हूँ क्या? यस सर। तो दिस इज माय कोएफिशिएंट एंड दिस इज माय डिजाइन लोड, बराबर है ना। यूडीएल को अगर मैंने इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया तो ऐसा ही लिखना पड़ेगा ना मुझे। तो वही चीज यहाँ पे दी गई है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज दिस इज क्लियर टू एवरीवन गाइस? प्लीज बता दो एक बार सो दैट वी कैन मूव Yes, अहेड। sir. तो बेटा अभी हम सीधा सीधा क्या यस करेंगे, सीधा सीधा हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे यहाँ पे शेयर फोर्स। ओके, तो देखो, तो सबसे बड़ा शेयर फोर्स आपको किस जगह पे मिलेगा बेटा, ये बता दीजिए मुझे। जैसा आपने यहाँ पे बताया मुझे बेंडिंग मोमेंट में, जैसे आपने मुझे बताया कि सबसे बड़ा बेंडिंग मोमेंट सर आपको स्पैन चाहिए होगा तो यहाँ पे मिल जाएगा, और अगर सपोर्ट चाहिए होगा तो यहाँ पे मिल जाएगा। सिमिलरली शेयर फोर्स मुझे किस लोकेशन पे मैक्सिमम मिलेगा, कोई बता पाएगा आप में से? कौन से कोएफिशिएंट्स की सम ज्यादा होगी बेटा? करके देखो, सारे कोएफिशिएंट्स ऐड करो। 4 प्लस 0.45 मतलब क्या? 0.85। ये 0.6 प्लस 0.6 1.2। ये 0.6 प्लस 0.55 मतलब 0.155। और ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा फाइनल 1.1 बराबर। 1.1। हाँ, तो कौन सा बड़ा आया सबसे? ये वाला आया कि नहीं बताओ? यस सर। यस। तो बेटा आपको सबसे बड़ा शेयर फोर्स जो आप डिजाइन शेयर फोर्स लेंगे सारे स्पैन्स में, तो सबसे बड़ा शेयर फोर्स आपको इधर ही मिलेगा। तो इसी शेयर फोर्स के लिए अपना सारा डिजाइन बनेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes. जो कुछ भी चेक होंगे वो इसी शेयर फोर्स के लिए हमारे लगेंगे। तो यहाँ से आपको समझ गया बेटा। तो यहाँ पे अगेन हम बेंडिंग मोमेंट की तरह लिखते हैं कि कहाँ पे अपना क्रिटिकल स्पैन होगा। जैसा हमने यहाँ पे लिखा था क्रिटिकल स्पैन, मैंने आपको लिखवा के दिया होगा। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद फ्रॉम रेफरिंग टेबल 19, सॉरी टेबल 19 नहीं, टेबल 13 पेज 36। तो बेटा अगर हमने इसको अगेन नाम दे दिए A B C D, तो A and D are end supports. So the coefficients given for these are 0.5 for DL and 0.45 for LL. Yes or no? प्लीज क्रॉस चेक करते रहो। बराबर लिख रहे हैं ना हम लोग टेबल 13 में देख के? प्लीज क्रॉस चेक इट। 0.4 and 0.45 correct. Then for the support next to the end support 0.6 and कितना था वो 0.55 and 0.6।
Yes. बराबर. एंड फॉर सपोर्ट नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट, मतलब कौन से बेटा, बी एंड सी के लिए वैल्यूज क्या है अपने पास, इनर साइड एंड आउटर साइड है. तो इनर में है 0.6 और यहाँ पे है 0.55 एंड 0.6. इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ, अपना बीम यहाँ Yes, पे sir. एंड हो गया. अभी देयर इज नो अदर इंटरमीडिएट सपोर्ट. ओके, अपने क्वेश्चन के लिए लिख रहे हैं हम लोग. हाँ, ये चीज, नो इंटरमीडिएट सपोर्ट इज देयर, देयरफॉर ये जो चीज यहाँ पे दी गई थी बेटा, क्या थी ये 0.5 और 0.6, दिस विल बी ऑफ नो यूज फॉर यू राइट नाउ. इज इट क्लियर? Yes. हाँ. Yes, sir. तो बेटा सबसे ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट फॉर द शियर फोर्स, तो यहाँ पे नोट लिखेंगे बढ़िया तरीके से अगेन. तो देयरफॉर the critical value of shear force, critical value of shear force will be available at outer side of support which is next to the end support. बराबर है ये बात? बराबर. Yes, sir. तो यहां से आप जो बेटा सबसे बड़ा डिजाइन फोर्स लेंगे शियर फोर्स, तो सबसे बड़ा डिजाइन फोर्स आपका या तो इस पॉइंट पे आएगा या तो इस पॉइंट पे आएगा. मैंने Yes, अभी sir. आपको एक्सप्लेन किया था. बराबर है. और आपका सबसे बड़ा बेंडिंग मोमेंट आपने बेटा इस पॉइंट का लिया है और इस पॉइंट का. बराबर है ना? दीज आर द मैक्सिमम वाले पॉइंट्स. बीएम मैक्स, बीएम मैक्स, दिस इज एसएफ मैक्स, एसएफ मैक्स. बराबर है चीजें? चलो. So design shear force maximum will be calculated as, कैसे कैलकुलेट होगा बेटा, 0.6 इंटू WLL इंटू LEX प्लस, दोनों भी पॉजिटिव है, ध्यान से देखना, प्लस माइनस साइन देखते रहो, प्लस WLL सॉरी DL आएगा ना यहाँ पे, DL इंटू LEX. ये बात सबको क्लियर हुई क्या बेटा? पहले बता दो. टेबल क्लियर हुआ? 12 और 13 टेबल सबको एकदम क्लियर हो गया बढ़िया तरीके से. चलो. तो यहां से हमने जो कैलकुलेट किया अभी हम लिखेंगे. तो सिंस दिस इज अ कंटिन्यूअस स्लैब और कंटिन्यूअस बीम, देयरफॉर डिजाइन बेंडिंग मोमेंट्स जो होंगे बेटा हमारे, डिजाइन बेंडिंग मोमेंट्स, तो सबसे बड़ा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या आएगा, देखो जरा ध्यान से. वो इक्वेशन फिर से लिखो और उसमें भी वैल्यूज डालो. ओके. तो ये आएगा हमारा 1/10 WLL, 1/10 WUDL. तो WLL एंड WUDL की वैल्यू देख के मुझे बताओ. वन बाय 12 ही है ना ये, कि 1/9 है बेटा? वो भी बता दो यार एक बार. हाँ हाँ हाँ, सपोर्ट का 1/9 है, मिड वाला 1/12 सबसे बड़ा है. ओके, 1/9, 1/10. हाँ बताओ इसकी वैल्यू बताओ. 1/10 इंटू WLL कितना कैलकुलेट किया है हमने? हाउ मच इज द WLL? अल्टीमेट लाइव लोड कितना आया बेटा हमारा कंटिन्यूअस बीम पे? 7.5. 7.5. 7.5 इंटू LEX हमने लिया है बेटा 5.2 का स्क्वायर, प्लस 1/12 इंटू WUDL कितना आया है? अल्टीमेट डेड लोड 5.5, 10.5. 10.5 बराबर, इंटू 5.2 का स्क्वायर. अभी आपको समझ में आया क्यों हमने ये अलग और ये अलग कैलकुलेट किया था? अभी आपको क्लियर हुआ बेटा क्यों हमने सेपरेट सेपरेट कैलकुलेशन किए थे दोनों का? यस. 3.9. हाँ, तो बताओ बेटा टोटल बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम ऑन स्पैन कितना आ रहा है? 3.94. 43.94 किलो न्यूटन मीटर. करेक्ट. और दूसरा आपका आ रहा है बेटा
निगेटिव बेंडिंग मोमेंट ये आएगा आपका स्पैन के लिए और ये आएगा आपका सपोर्ट के लिए। तो ये कितना आएगा देखो, माइनस माइनस साइन रिप्रेजेंट्स ओनली द निगेटिव बेंडिंग मोमेंट, इट इज नॉट माइनस लाइक अल्जेब्रिक माइनस नहीं है बेटा, ये सिर्फ साइन वाला। दिस माइनस विल रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ बेंडिंग मोमेंट ओनली, नेचर ऑफ बेंडिंग मोमेंट के लिए वो साइन यूज किया गया है, ऑलवेज ध्यान में रखना। ये आपको इसमें से कम नहीं करना है। -1/9 WULL इंटू LEX का स्क्वायर माइनस 1/10 इंटू WUDL इंटू LEX का स्क्वायर। बराबर लिखा है क्या फॉर्मूला, एक बार चेक करके बताएंगे सब लोग। 1/9 इंटू 7.5 इंटू 5.2 का स्क्वायर माइनस 1/10 इंटू 10.5 इंटू 5.2 का स्क्वायर। तो ये बताओ बेटा मैक्सिमम निगेटिव बेंडिंग मोमेंट आपको कितना रेजिस्ट करना है। What is total of this? $50.92. 50.92 किलो न्यूटन मीटर। बराबर। तो ये हो गया बेटा आपका डिजाइन बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन। सिमिलरली आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा डिजाइन शियर फोर्स। तो डिजाइन शियर फोर्स विल बी योर एट सपोर्ट नेक्स्ट टू दी, लिख लीजिए इसको, मतलब आपको बार बार याद आएगा बेटा, नेक्स्ट टू दी एंड सपोर्ट। ओके, ये क्या है बेटा आपका क्रिटिकल पॉइंट ऑन बीम। ओके, क्रिटिकल पॉइंट ऑन बीम, क्रिटिकल मतलब क्या, जहां पे सबसे ज्यादा आपको शियर फोर्स देखने को मिल रहा है। तो वो कितना मिल रहा है जरा देखो तो एस एफ मैक्स, डायरेक्टली इसको ना पॉजिटिव ना नेगेटिव करते हुए, क्योंकि एस एफ पॉजिटिव और एस एफ नेगेटिव के लिए हमारे पास अलग अलग चीजें नहीं है प्रोवाइड करने की, लेकिन बेंडिंग मैक्सिमम मतलब बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव एंड बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव का हमारे पास अलग अलग से प्रोवाइड करना पड़ेगा स्टील। तो एस एफ मैक्स विल बी कितना आएगा बेटा 0.6 इंटू WULL/LEX प्लस 0.6 इंटू WUDL इंटू LEX। ये बात सबको समझ में आ रही है ना, लेकिन क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि उस टेबल में दिया है दोस्तों। तो 0.6 इंटू 7.5 इंटू 5.2 प्लस 0.6 इंटू 10.5 इंटू 5.2। चलिए ये बता दो बेटा एस एफ मैक्स कितना आ रहा है। 56.16. कितना 56.16. 56.16 बराबर। Yes. ओके किलो न्यूटन। तो दिस कंप्लीट्स योर SF एंड BM कैलकुलेशन स्टेप इन द कंटिन्यूअस बीम। यस और नो बताइए, चलिए जल्दी से। Yes. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू बेटा, देखो आपके पास अभी दो बेंडिंग मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट 1 एंड बेंडिंग मोमेंट 2। तो इसके बाद हम क्या करते थे, चेक फॉर फ्लेक्चर करते थे, यस और नो। स्टेप 6 7 जो होगा वो चेक फॉर फ्लेक्चर। तो इसमें आप क्या भी यूज करेंगे बेटा, बताओ मुझे, किस बेंडिंग मोमेंट के लिए आप डेप्थ का चेक दोगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए नोट, चेक द डेप्थ फॉर maximum value of bending moment on entire beam whether it is पॉजिटिव और नेगेटिव। ये चीज क्लियर है क्या सबको, बता दो। ये भी बेंडिंग मोमेंट है बेटा, ये भी बेंडिंग मोमेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अगर बीम को नीचे झुकाएगा तो ये बीम को ऊपर उठाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये समझ में आ रहा है आपको, बेंडिंग मोमेंट इज बेंडिंग मोमेंट, इट इज जस्ट showing that the ability of your structure to uplift in downward direction or in upward direction। तो सपोर्ट पे हमेशा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आता है, मतलब सपोर्ट से जो आपका स्लैब है वो ऊपर उठने की कोशिश करेगा, तो उसको भी तो आपको रेजिस्ट ही करना है ना दोस्तों। और मिड सेक्शन में इतना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, मतलब मिड वाला जो स्पैन है आपका इस बेंडिंग मोमेंट के साथ नीचे झुकने की कोशिश करेगा। तो दोनों में से बड़ी वैल्यू क्या है, तो आप ये जो यहाँ पे डी रिक्वायर्ड का चेक दोगे बेटा,
तो वो मैक्सिमम फ्रॉम दिस टू के लिए दोगे एंड दैट विल बी इक्वल टू, सॉरी क्या होता है ये, mu मैक्स। तो आपका यहाँ पे निगेटिव मोमेंट बड़ा है और Fe415 है ना अपना मटेरियल, तो ये आएगा आपका 0.138 FCK इंटू बी, वेयर बी इज योर 1000 mm। सुन रहे क्या सब लोग के चले गए? यस सर। हाँ, तो बेटा इसमें ये वैल्यू डालो। बड़ा मोमेंट क्यों यूज कर रहे हैं समझ में आया सबको? अगर इस डेप्थ ने अपने 50 को झेल लिया तो बेटा 43 को आराम से झेल जाएगा। ये समझ रहा है सबको? यस सर। हाँ, तो इसीलिए दोनों में से बड़ा। तो यहाँ पे साइन मत डालना लेकिन, बिकॉज दैट इज अ बेंडिंग मोमेंट, दैट इज नॉट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दैट पॉजिटिव नेगेटिव इज ओनली रिप्रेजेंटिंग इट्स नेचर, नॉट इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, 50.9 into 10 to the power 6 divided by 0.138 FCK is 20। चेक कर लेना एक बार, 20 लिया है कि 25 लिया है, और इसको चेक करो बेटा डेप्थ रिक्वायर्ड आपके पास कितना है। फिर हम रुकते हैं, फिर स्टील कैलकुलेशन अगले सेशन में करेंगे। ये वैल्यू बताओ मुझे कितना आ रहा है? वन वन 3.37 113.37 mm। और आपने प्रोवाइड कितना किया है बेटा? 200 mm किया है। तो अगेन हम क्या करेंगे बेटा, फ्रॉम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, बराबर क्या करेंगे हम, प्रोवाइड डी इक्वल टू कितना करूं आप बोलो? 113 रिक्वायर्ड है, आपने 200 दे के रखा है, उतने की जरूरत नहीं है। तो शैल वी प्रोवाइड 130 mm स्लैब डेप्थ, चलेगा क्या सबको? यस, तो वी विल प्रोवाइड 130 mm स्मॉल डी, देयरफॉर कैपिटल डी कितना हो जाएगा बेटा? बराबर, ये चीज सबको क्लियर हुई क्या? आपको इतने डेप्थ की जरूरत नहीं है, तो हमने क्या किया बेटा, डेप्थ में कर्टेलमेंट कर दिया। यस और नो? अभी आगे जो कुछ भी कैलकुलेशन होंगे वो इस डेप्थ के साथ होंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके बेटा, तो चलिए आगे की चीजें हम देखेंगे। एएसटी कैलकुलेशन कैसे होगा, पॉजिटिव एएसटी और निगेटिव एएसटी, यहाँ पे दो चीजें आएंगी आज। अभी आपको समझने को मिलेगा कि सपोर्ट पे क्यों लगता है स्टील और क्यों प्रोवाइड भी करना चाहिए, क्योंकि उसकी नीड होती है। तो उसके हिसाब से हम लोग इसको बेटा पढ़ेंगे। ओके, तो शैल वी कंक्लूड नाउ? दिस इज योर एसएफडी बीएमडी डायग्राम फॉर दिस कंटिन्यूअस बीम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, ऐसा क्वेश्चन आप जब थ्योरेटिकली सॉल्व करोगे तो आपको ये ड्रॉ करते आना चाहिए। दिस इज द प्रोपैगेशन ऑफ एसएफडी। ये भी पता होना चाहिए कहां से कहां ड्रॉ किया है, लेफ्ट टू राइट है कि राइट टू लेफ्ट है। चलो, so now we will conclude this lecture over here and we will solve for AST in our next lecture and shear check हम लोग अगले लेक्चर में प्रोवाइड करेंगे। ओके बेटा, इसीलिए मैं बोला था कंटिन्यूअस बीम हम शांति से देखेंगे, क्योंकि देखो कितना बड़ा डिजाइन होता है। अभी स्लैब में आपका शेयर का चेक ऑलमोस्ट सेफ होता है, लेकिन आपको तो बीम में है ना बेटा